have been highly acclaimed by leading critics of subcontinent. Short stories such as Aakhri Dawat, The Last Feast and Kuber have been included not only in Urdu but also in the syllabi of major international universities. His fiction has been translated into English, Hindi and various regional languages as well. Nemat Khana, which was translated into English, received the JCB Prize for Literature in 2022, the most prestigious award for Indian literature. The novel portrays food, kitchens and everyday meals not merely as necessities but as symbols of identity, power, gender, religion, class and existential anxiety. This makes it particularly significant from the perspective of sociology of food. In recognition of his literary and scholarly contribution, Professor Khalid Javed has received the Katha Award, the Uttar Pradesh Urdu Academy Award, Delhi Urdu Academy Award, and several other honors, including his fiction and Samman Awards as well. He has participated in numerous international literary conferences held in the United States, Pakistan, and other countries. His novel, Maut Ki Kitab, earned him awards from both the Uttar Pradesh Urdu Academy and Delhi Urdu Academy. He also received the Fiction Award from the Uttar Pradesh Urdu Academy. In 2008, he participated in the International Writers Conference at the University of Virginia, USA, and in 2012, he attended the Karachi Literature Festival organized by the British Council in collaboration with Oxford University. In 2017, he visited Princeton University in the USA, where he engaged in dialogue with students of South Asian literature. Today, he is recognized as one of the foremost creative voices in Urdu. His stories and novels not only give a new dimension to the aesthetics of Urdu fiction, but also introduce readers to question of human psychology, memory, and existentialism. In today's session, we request Professor Khalid Sahab to share with the students the creative background of Nemat Khana, the central idea of the novel, and his upcoming creative project so that the new generation may directly benefit from his literary journey. So thank you so much, Professor Khalid Javed, for accepting our invitation. And I also welcome Dr. Sujata and one more colleague, Shabir Sahab from Jamia Millia Islamia. So thank you so much. And now, please, I request Kausar Mazhari Sahab to say a few words about Khalid Javed and his work. Over to you, sir. बहुत शुक्रिया सलाम अब्दी साहबा, खालिद जावेद साहब और तमाम हाज़रीन, तलबा और तालिबात। ये मेरे लिए खुशी की बात है कि सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में शोबे उर्दू के नहायत ही लायक फायक उस्ताद खालिद जावेद साहब को ये मौका दिया गया। खालिद जावेद साहब के बारे में प्रोफेसर आज़रा अब्दी साहबा ने जो कुछ बातें की, इससे अंदाज़ा होता है कि उनका जो स्पैन ऑफ वर्क है वो कितना ज़्यादा फैला हुआ है। खालिद जावेद साहब की जो राइटिंग्स है उसके बारे में मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। खालिद जावेद साहब जो लिखते हैं वो हमारे आसपास की चीज़ें लेकर लिखते हैं, और ये कह सकते हैं आप कि जो भी राइटर होता है वो आसपास से ही लेता है, लेकिन ऑब्जर्वेशन में फ़र्क हो जाता है। ऑब्जर्वेशन उसके बाद फिर ये होता है कि उसका प्रेजेंटेशन। कोई भी राइटिंग जो लीनियर एक्सप्रेशन में चलती है
कोई कहानी हो, कोई नावल हो, तो उस पर ज़्यादा गुफ्तगू नहीं हो सकती, नहीं बातें हो सकती, इसलिए कि उसमें परतें नहीं होती। जहां उर्दू में जैसे सनातों को कहते हैं, फिगर ऑफ स्पीच जिसको कहते हैं, मेटाफर है, एलिगरी है, सिमिली है, हाइपरबोली है, ये सब चीज़ें जहां इस्तेमाल ज़्यादा होती हैं, तो खालिद जावेद साहब के यहाँ जो गहराई है, जो डेप्थ है, वो इसी वजह से है कि इन्होंने उन चीज़ों का, फिगर ऑफ स्पीच का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखा, इस्तेमाल किया है। आपको लगेगा कभी कभी ये जो नावल है जिसके बारे में बात हो रही है, नेमत खाना, इससे पहले मौत की किताब, उसके बाद नेमत खाना के बाद एक खंजर पानी में, उसके बाद अरसलान और बहज़ाद, मुस्तकिल 4 नावल आ चुके हैं। उसके बाद कहानियों का मजमुआ आ चुका है। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो मैंने महसूस किया है, कि खालिद जावेद जब लिखते हैं तो इसकी परवाह नहीं करते कि उनको पढ़ने वाले कितने हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। इसकी फिक्र अगर हो जाए आपको कि इसकी समझ में बात आ जाएगी, इसकी नहीं आएगी, तो बड़े राइटर आप नहीं हो सकते। खालिद जावेद को पढ़ने के लिए भी आपको हौसला और हिम्मत चाहिए। समझने का मरहला जो होता है वो तो बाद में आता है। इनके यहाँ जो कैरेक्टर्स होते हैं, ये जो नावल है इसमें हफीजुद्दीन बाबर उर्फ गुड्डू मियाँ, अब मेटामॉर्फोसिस का पूरा एक मरहला है जिसको कल्ब माहियत हम उर्दू में कहते हैं। वो कैरेक्टर कितने रूप में आता है, तो ये आसान काम नहीं है कैरेक्टर को संभालना और कैरेक्टर के लिहाज से बातें करना, उसकी फिक्र है, उसका जो थॉट है उसको बरकरार रखना, फिर जो पूरा माहौल है आसपास का। अब एक किचन, नेमत खाना का तस्वूर आज की जो जनरेशन है उसको पता नहीं नेमत खाना होता क्या। वो किचन इतना सुन रखा, उसके बारे में इन्होंने तंज भी किया है। एक कैरेक्टर किचन के बारे में पूछता है तो उसका जवाब किसी और तरह ये देते हैं। ये जो नेमत खाना है और जिस तरह से नक्शा पेश किया है, और एक ऐसे नेमत खाना को सामने पेश किया है, और इनका जो मानना है कि पूरी जिंदगी का एक पिवोटल रोल जो हो सकता है वो किचन में तय होता है सब कुछ। और किचन में इसलिए तय होता है कि वहां औरतें होती हैं। ये पुराना तस्वुर है। आज के ज़माने में एक अलग बहस हो सकती है जेंडर के हवाले से या फेमिनिज्म के हवाले से कि ये तो आप दिखा रहे हैं कि औरतें ही खाना पका रही हैं। ये बहस का मौजू हो सकता है, लेकिन जिस हवाले से है उसमें ये बात नहीं कही जा सकती। जिस ज़माने की कहानी है, कोई भी जैसे ज़मा और मका की बात होती है कि किस ज़माने की कहानी है और कहाँ की कहानी है, नॉवेल में ये ज़रूरी होता है, उसको जानना देखना होता है। और क्योंकि सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में ये प्रोग्राम हो रहा है, इसलिए इस बात की ज़्यादा अहमियत है कि कुछ ऐसे पोर्शन मैं 1-2 इक़्तिबास पढ़ के सुनाऊंगा आपको, जिससे ये पता चले कि सोशियोलॉजिकल या एंथ्रोपोलॉजिकल बैकग्राउंड इसका क्या हो सकता है। ऑब्जर्वेशन खालिद जावेद का अगर है तो वो कितना इम्पोर्टेंट हमारे लिए। एक आजकल बहुत से उस तरह के वृद्धा आश्रम वगैरह का तस्वुर बहुत बढ़ गया है। एक इक़्तिबास पढ़िए और उससे जोड़ के देखिए। नूरजहां खाला का पागलपन इतना बढ़ गया था कि उन्हें मोहल्ले वालों रिश्तेदारों ने मिलकर उनके हाथ पांव रस्सी से बांधकर एक दिन पागल खाने में पहुंचा दिया था। जब से वो पागल खाने में भर्ती हुई थी, मुझे याद नहीं कि कोई उन्हें कभी वहां देखने या मिलने गया हो। और ये ठीक भी था। घर में झाड़ू लगाने के बाद कूड़ा करकट और सड़ा हुआ खाना या प्याज, लहसुन और तरकारियों के छिलकों को इकट्ठा करके जब बाहर निकाल दिया जाता है तो उन्हें देखने, कूड़ेदान में झांकने, मोरियों नालियों में हाथ डाल कर टटोलने भला कौन जाता है। अब ये जो एक कैरेक्टर को जो लगता है कि अब उसकी जरूरत ही नहीं फैमिली में है, उसको किस तरह से आउटडेटेड करार दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। और उसको यहाँ तक के झाड़ू लगाकर जो कूड़े आप बाहर में डाल देते हैं, तो ठीक उसी तरह जैसे आप कूड़े में जाके नहीं देखते कि क्या क्या हमने फेंका है, कूड़े में क्या डाला है, उसी तरह उस औरत को भी घर से निकाल दिया जाता है। ये आपके पर्सपेक्टिव के हवाले से मैं बता रहा हूं। एक और देख लीजिए, ये थोड़ा सा
बावर्ची खाना मतलब किचन है। राजेंद्र ने हमखाना अंदाज में पूछा किचन की क्या औकात है और उसकी तारीख भी कितनी सी है, जिसे तुम किचन कह रहे हो। 18वीं सदी से पहले यूरोप तक में इसका कोई वजूद नहीं था। ये तो खाना पकाने की जगह पर पानी की सप्लाई और स्टोव की इजाद के बाद पैदा हुआ है। बावर्ची खाना वो था जहाँ चूल्हे में लकड़ियों के जरिए आग रोशन होती थी, उसकी दीवारें धुएं से काली होती थी, बिल्कुल काली। इस्लाम साबरी ने अपनी मालूमात का रूप झाड़ा। तो क्या अब ऐसे बावर्ची खाने नहीं होते? होते हैं। मेरे अंदर कोई चीख कर कह रहा था। और वहाँ छिपकलियां होती हैं, सांप के बच्चे होते हैं, वहाँ पत्थर की सील होती है। तो गौर से सुनिए, मिट्टी के तेल का कनस्तर होता है, वहाँ कत्ल होते हैं, बावर्ची खाना कत्लगाह होता है। मगर किसी ने सुना नहीं। मगर ये मैंने बुलंद आवाज में कहा। बावर्ची खाने में आग होती है, कभी ये खाना पकाती है, कभी खाना गर्म करती है और कभी कभी इंसानों को जला भी डालती है। ये तो कोई बात नहीं, किचन में भी किसी न किसी शक्ल में आग तो होती ही है और हादसात वहां भी होते रहते हैं। मेरे ख्याल में बावर्ची खाने का अंग्रेजी मुतरादिफ यानी उसका जो सिनोनिम होता है किचन है। नहीं, बावर्ची खाने की भयानक रिवायत का कोई ताल्लुक इस जदीद तर्ज के 2 कौड़ी के किचन से नहीं कायम किया जा सकता। अब इससे अंदाजा ये होगा कि वो जो नेमत खाना का तस्वूर है वो उनके अंदर क्या है। एक चीज इसके अंदर दिखाई गई है पूरी किताब में, पूरे नावल में, टेंस, इंटेंस और शिद्दत जिसको हम कहते हैं, और बदशगुनी। आज ये खाना पक रहा है और एक किरदार जो हफीजुद्दीन बाबर है, वो छिपकली दूध में पड़ जाने के बाद, उसकी चाय पीने के बाद उसके अंदर एक ऐसा मादा पैदा हो जाता है, ऐसी सलाहियत पैदा हो जाती है कि जब भी कोई खाना पकता है घर में, वो बता देता है, उसको पता चल जाता है कि इसके बाद क्या हादसा होने वाला है। उस कैरेक्टर को ये पता चल जाता है। उसके बाद ये खुद जो मेन कैरेक्टर है इसका, गुड्डू मियाँ, उसको उर्फ नाम है, उर्फी नाम, वो 2 कत्ल तो वो खुद भी करता है। उसके 2 बेटे हैं, जफर और अदनान, वो खुद भी जाकर के बाद में अपने बाप को मार देता है। हार्ट अटैक होता है, लेकिन उसको परेशान करता है कि हम लोग दुबई में चल के रहें, ये देश हमारे रहने वाला नहीं। वो भी मुकालमा है। कंटेम्प्रेरी जो सेंसिबिलिटी होती है उसको भी सामने रखा है। सिर्फ यानी फूड डिस्कोर्स जिसको कहते हैं, वो ये नहीं है कि खाने पीने की चीजें हैं और उसी के हवाले से हम जहाँ जीते हैं, जहाँ रहते हैं, उसके साथ साथ उसको जोड़ के देखने की, खाने पीने की जो अशिया है, जो चीजें हैं, उसके हवाले से कैरेक्टर के अंदर क्या तब्दीली आती है, वो क्या महसूस करता है, उसको बताने की कोशिश की गई है। और इतने कैरेक्टर हैं, छोटे मामू है, बड़े मामू है, रिहाना फूफी है, और भी जितने कैरेक्टर हैं, अदनान है, जफर है, और उसमें बहुत से कैरेक्टर ऐसे आते हैं, पॉलिटिकल कैरेक्टर भी आ जाते हैं। मसला ये है कि इसमें नॉवेलों में सबसे बड़ी बात यह होती है कि बहुत से कैरेक्टर जब होते हैं तो उनको संभालना मुश्किल हो जाता है। सबकी आइडेंटिटी को बरकरार रखना ये मुश्किल काम हो जाता है। सब बातें कर रहा है लेकिन सबकी अपनी आइडेंटिटी भी बाकी है। इसका मतलब है, और एम बाख्तिन बहुत बड़ा हमारा ये है, क्या कहते हैं, फिक्शन का नक़ाद है। उसने कहा था कि डबल वॉइस जो है, या मल्टी वॉइस जिसको पॉलीफोनिक भी कहते हैं, तो ये जो नावल है पॉलीफोनिक है। मुख्तलिफ आवाजों का एक ऐसा जमघटा है, यहाँ पर हुजूम है, बहुत सी आवाजें तरह तरह की आती है, और कभी सिलबट्टे की आवाज आ रही है, कभी उसमें बघार लग रही है उसकी आवाज आ रही है, और लोगों के खांसने की आवाज आ रही है। ये तमाम तर चीजें जो बदशगुनी की हो सकती हैं, जिसको आमतौर से राइटर देखना और लिखना पसंद नहीं करता, वही मौजूआत खाली जा देते हैं। यानी इसको हम कह सकते हैं कि वो मौजूआत, वो मज़ामीन, वो टॉपिक जिसकी तरफ हमारा कहना चाहिए ध्यान ही नहीं जाता, वो भटकी हुई जो रूहें हैं उसको तलाश करना। कैरेक्टर निकल भागता है और कभी कभी चौथी सीढ़ी पे जाके बैठ जाता है, वहां से झांकता रहता है अंदर इसमें क्या क्या हो रहा है। किसी ने सिलबट्टे को उठाया, किसी ने कनस्तर को उठाया, मतलब मिट्टी का तेल उलट दिया, उसमें आग लगा दी चूल्हे में। तो ये तमाम जो यानी इसको कह सकते हैं कि जो शिद्दत है इंसानी जिबिल्लत की, इंस्टिंक्ट की, उसको बहुत गहराई से खाली जावेद साहब ने पकड़ने की कोशिश की है और उसको पेश करने की कोशिश की। ये सबसे जो अहम बात मुझे लगी कि
किरदारों को जिस तरह से संभाला है, ये मुश्किल काम होता है कि बहुत से किरदार जमा हो जाएं और उनको बचा के आखिर तक ले जाए, जिसकी जो शिनाख्त है, जो आइडेंटिटी है, वो खराब ना हो, मजरूह ना हो। तो ये बहुत बड़ा कारनामा खालिद जावेद साहब का है कि मल्टी वॉइस्ड नॉवेल लिखते हुए ये मक्खियों की भनभनाहट सी महसूस नहीं होती कि बहुत से किरदार बोल रहे हैं, किसी की आवाज ही समझ में नहीं आ रही। हर आवाज आप पहचान सकते हैं दूर से, ये गुड्डू मियाँ की आवाज है, या यहाँ तक के कैरेक्टर में सुम्बुल नाम का तोता भी है। अब वो पुराने जमाने में तोता पालने का बड़ा रिवाज था, और गुड्डू मियाँ जब दाखिल होते हैं तो गुड्डू मियाँ आ गए, गुड्डू मियाँ आ गए, इस तरह की रट वो लगाता है, तो एक कैरेक्टर घर का फर्द बन जाता है। तो उस कैरेक्टर को भी संभाला। और एक वक्त ये भी आता है कि जब परेशानी के आलम में, उस वक्त जब वो गुड्डू मियाँ आ गए बोलता है तो परेशान होके ये कैरेक्टर कहता है कि जी मैं आता कि उसकी गर्दन मरोड़ दूं, हालांकि उससे प्यार है, उसने पाला है उसको। तो इस तरह से तमाम किरदारों को संभालना और एक पॉलीफोनिक नॉवेल क्रिएट करना, लिखना, ये आसान काम नहीं होता। और ये जो अवार्ड देने की बात है, तो अवार्ड देने के लिए कोई एक आदमी, उर्दू का कोई आदमी वहां था भी नहीं कि कह दे कि भाई हमारे उर्दू का नॉवेल है, इसको दे दीजिए। वो इंटरनेशनल लेवल के वो लोग होते हैं जो देखते हैं कि इसमें असल चीज क्या है। एक तो ये कि फूड डिस्कोर्स का हमारे उर्दू में इस तरह से कोई नावल अब तक नहीं लिखा गया, और मेरे ख्याल से उर्दू ही में नहीं, दूसरी जबानों में भी, रीजनल में भी, या उस तरफ छोटी छोटी चीजें तो आ जाती है। आप कफन में, प्रेमचंद का जो कफन है उसमें जो माधव गेसु है उसके खाने का जो जिक्र है, और ठाकुर के यहाँ जो पूरी या जलेबियां खाई थी वो याद करता है। तो फूड डिस्कोर्स फिक्शन में इस तरह से तो कहीं कहीं जुगनू के चमक की तरह वो चीजें नजर आ जाती है, लेकिन बाज़ाब्ता उस पर नावल लिखना और ऐसा किरदार खल्क करना, बनाना कि जो महसूस कर लेता है कि आज अगर कढ़ी पकी है, करेला बघार के उसके बाद वो तरकारी अगर पकी है, तो आज ये हादसा होने वाला है, आज ये फसाद होगा, यहाँ लोग मारे जाएंगे, इंदिरा गांधी का कत्ल होने वाला है, राजीव गांधी का कत्ल होने वाला है। ये तमाम चीजें इसके अंदर मौजूद है। जो पॉलिटिकल एक विजन हो सकता है वो भी इनके यहाँ मौजूद है, और जो सोशियोलॉजिकल बैकग्राउंड है या एंथ्रोपोलॉजिकल बैकग्राउंड है, क्योंकि इंसान की जिबिल्लत को, जिसको हम इंस्टिंक्ट कहते हैं, उसको पढ़े बिना, उसको या छुए बिना इस तरह का नावल नहीं लिखा जा सकता। तो खालिद जावेद साहब को मैं मुबारकबाद पहले भी दे चुका हूँ, फिर दे रहा हूँ, और सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट वाला का बेहद शुक्रिया आपका कि आपने ये महफिल, हम समझते हैं कि ये हमारे लिए बहुत बड़ा रिवार्ड है, अवार्ड है कि दूसरे डिपार्टमेंट में भी उर्दू की पसीराई हो रही है, उर्दू को इस तरह से नवाजा जा रहा है। तमाम तलबा तालिबात का और जो भी हमारे यहाँ प्रोफेसरान हैं, सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। Now I request Professor Khalid Jawad sir. आप यहाँ पर बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट का, और जितने भी हजरात और सामीन यहाँ मौजूद हैं, असातिज़ा, कोलीग्स और तमाम स्टूडेंट तलबा। वाकई मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि जैसा कि कौसर साहब ने कहा, और मेरे बारे में ज़्यादा तारीफ की, इतनी तारीफ के लायक हुई, तो जैसा उन्होंने कहा कि हाँ, कि सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में इस तरह का जलसा होना या मौका देना एक उर्दू के एक मामूली नावलिस्ट को, तो ये मेरी इज्जत अफजाई है बहुत, जिसके लिए मैं फिर एक बार दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अब जाहिर है कि यहाँ सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में जब आए, ये इस नावल को पढ़ने की कई तरीके हो सकते हैं और कई रास्ते होते हैं, मतलब किसी भी लिटरेरी टेक्स्ट को पढ़ने के, क्योंकि जो नैरेटिव होता है उसमें बहुत लेयर्स होती हैं और शायद ये मल्टी लेयर्ड है। और सोशियोलॉजी ऑफ फूड के हवाले से जो बातें अभी की,
हमारे दोस्त ने कौसर साहब ने, तो इतना हम सबको पता है और आप लोगों को तो अच्छी तरह से पता होगा कि पिछले 20 या 30 सालों में सोशियोलॉजी ऑफ फूड एक बहुत बड़ा एकेडमिक डिसिप्लिन बन के उभरा। यहाँ तक कि जो फूड एक मिरर की तरह आया कि जो कास्ट लेडर है या जो सोशल हायरार्की है, एक सोशल स्टेटस है। खाना अपने आप में एक सोशल स्टेटस, और ये कोई आज की बात नहीं है, ये हमेशा से चला आ रहा है। आज हम जब बात कर रहे होते हैं कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो झूठन है उसको देखिए, तो उसमें खानों के बारे में कितना जिक्र है कि दलितों का खाना अलग है और मुसलमानों का खाना अलग है, अफगानों का खाना अलग है, मुगलई फूड को एक स्टेटस सिंबल मान लिया गया है। लेकिन ये भी नहीं मालूम है हमें कि मुगल लोग जो थे वो मूंग की खिचड़ी भी बड़े शौक से खाते थे, जो उसको हम लोग कहते हैं कि बीमारों का खाना है, लेकिन वो मूंग की खिचड़ी भी उनके यहाँ जो था, खिचड़ी बिरयानी नहीं खिचड़ी, वो भी उनके यहाँ खाना एक स्टेटस सिंबल था। हमको ये भी नहीं मालूम है कि जो ये समोसा जो ये लफ्ज है, तो ये समोसा बुनियादी तौर पे ईरान से आया और ये फारसी का लफ्ज है जिसके माने समोसा यानी सह माने तीन कोनों वाली कोई चीज, इसीलिए इसको पहले जो था वो तिकोना भी कहा जाता है। हमको ये मालूम है कि रसगुल्ला जो है वो बंगाल के अंदर, बंगाल की जो नॉन मुस्लिम जो पूरी कम्युनिटी है उसने ईजाद किया, लेकिन गुलाब जामुन मुसलमानों ने ईजाद किया। लेकिन ये सारी बातें कहीं ना कहीं फूड पॉलिटिक्स में आ जाती हैं। मतलब एक इन सब चीजों का आप वो, और ये एक किताब है अब्दुल हलीम शरर की, बहुत मशहूर, गुज़िश्ता लखनऊ, उसका अंग्रेजी में भी तर्जुमा हो चुका है, बहुत सी जबानों में तर्जुमा हुआ है। वहाँ जो नवाबीन के जो खाने होते थे, राजा महाराजाओं के जो खाने होते थे, उनके बारे में जिक्र है। उर्दू दास्तानों में जितने खानों के जिक्र है, अभी मैं इसमें तो पढ़ के सुनाऊंगा, जो मतलब किस तरह के खाने होते थे वो खाने, और जो कि अवामी खाने हुआ करते, जजवानों को जो खाने दिए जाते थे उनमें जमीन आसमान का फर्क होता था। ये एक तरह का ऑपरेसिव सिस्टम भी था। मैं कहता हूं अगर यही ऑपरेसिव सिस्टम रहा बाकी, तो कैसे ये जो मतलब कोई ये खानों का जो स्टेटस क्यों है कि अभी भी हम उन्हीं खानों को जो है वो एक इज्जत देते हैं, मुगलई खानों को, पूरी कचौरी को, बनियों के खानों को, पंडितों के खानों को। ये जो पूरा सोशल लेडर है, तो ये जो इनइक्वलिटीज हैं, सोशल इनइक्वलिटीज हैं, उनका एक एनालिसिस आप फूड सोशियोलॉजी के जरिए कर सकते हैं। अब ये एकेडमिक किताब नहीं है, ये एक नावल है, लेकिन इसको भी एक रिसर्च मेथोडोलॉजी की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। और आजकल तो रिसर्च मेथोडोलॉजी में स्टोरी टेलिंग का बड़ा बाहर तो मैं गया तो मैंने देखा कि वहाँ तो वो ये कहते हैं कि स्टोरी टेलिंग के जरिए रिसर्च मेथोडोलॉजी कीजिए आप। उसमें चाइल्ड लेबर पे, बाउंडेड लेबर पे, इवन इकोनॉमिक्स में इस तरह से काम हो रहे हैं। अब जैसे हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री की सारी किताबें भी मिलके वो सब कुछ नहीं बता सकती, जो कि वार एंड पीस जो नावल लिखा गया है टॉलस्टॉय का, उसमें जो कुछ जंग के बारे में मालूम होगा वो हिस्ट्री की तमाम किताबें मिलके बता नहीं सकती, क्योंकि हिस्ट्री में तो वही हुआ है जो हुआ है। हिस्ट्री में फैक्ट्स होंगे, हालांकि वो फैक्ट्स भी जो होंगे वो राजा महाराजाओं के बारे में होंगे, उनके जरिए जो मतलब जंगें लड़ी जाएंगी उनके बारे में हो, वहां भी अवाम गायब होगा। इसीलिए शायद ये जो है कि आजकल जो है वो सबाल्टर्न हिस्ट्री का चलन हो गया है, लेकिन वो बहुत ज्यादा मकबूल नहीं हुआ है, बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ है। लेकिन ये कि हिस्ट्री आपको ये तो बता देगी कि कोई इवेंट हुई, हिस्ट्री आपको अकबर ने कितनी लड़ाइयां लड़ी, कहाँ जीते कहाँ हारे, ये तो हिस्ट्री बता देगी। लेकिन ये हिस्ट्री कभी नहीं बताएगी कि अकबर हंसते कैसे थे, अकबर की स्माइल कैसी थी, या अकबर जब सुबह को उठते थे तो मंजन कौन सा करते थे। लेकिन जब नावल लिखेंगे हम अकबर के ऊपर, तो हमें एक कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए ये सब करना पड़ेगा, भले ही वो हमारा इमेजिनेशन हो। तो इमेजिनेशन नहीं होता है, बल्कि ये होता है कि मुमकिना दुनिया हिस्ट्री में वो होता है जो कि हुआ, लेकिन जो नहीं हुआ है फिक्शन उसको भी जगह देता है। यानी जो हो सकता था, जिसकी की प्रोबेबिलिटी थी लेकिन नहीं हुआ, वो इम्कानात क्या क्या थे, जो मतलब ठीक है हुआ नहीं है वो, लेकिन वो हो तो सकता था। इस तरह मैं ये कहता हूं कि फिक्शन झूठ नहीं है, बल्कि फिक्शन एक ग्रेटर ट्रूथ है।
वो एक बड़ा सच है, क्योंकि उसमें वो भी समाया हुआ है जो कि नहीं हुआ था, लेकिन वो हो सकता था, अब बच गए, नहीं हुआ, लेकिन ऐसा हो तो सकता था। इसलिए फिक्शन की दुनिया जो है वो बड़ी दुनिया मानता हूं मैं, एक बड़ी दुनिया है। और इसकी स्टडी फूड सोशियोलॉजी के हवाले से अभी मैं ये देखिए 18वीं 19वीं सदी में जो ये हमारे यहाँ जो ये ज़माना है पूरा 18वीं 19वीं सदी का, इसको हम लोग कहते हैं कि रेनेसां का ज़माना है, ये निशात सानिया का, रेनेसां का, पुनरुत्थान का ज़माना है। तो इसमें जो नए और पुराने का एक संगम सा हो रहा था। तो देखिए जब नई चीज़ आ रही होती है और पुरानी चीज़ जा रही होती है, लेकिन अभी नई चीज़ पूरी तरह से आई नहीं है, नया कल्चर पूरी तरह से आया नहीं है और पुराना पूरी तरह से गया नहीं है, तो वो बहुत ही कंफ्यूजन वाली स्टेट होती है। वहाँ बड़ा कंफ्यूजन होता है, वहाँ बहुत धुंध होता है। गर्म पानी में ठंडा पानी जैसी मिलाते हैं तो बड़ी धुंध उठती है, कुछ नजर नहीं आता है वहाँ। अब देखिए कि नज़ीर अहमद के जो नावल हैं, इब्नुल वक्त खास तौर से, वहां पे खानों से बात शुरू हो रही है कि खाना तो नीचे बैठ के खाना चाहिए, दस्तरखान पे, फर्श पे, थाली लगा के, चटाई पे, उकड़ू बैठ के खाना चाहिए। लेकिन वो जो पढ़कर आए हैं विलायत से, वो कहते हैं कि सूट टाई पहन के छुरी कांटा लेके मेज पे खाना खाना है। खानों से शुरू हो रहा है पूरा डिस्कोर्स वहां पे। इब्नुल वक्त के यहाँ ये जो नावल है, इसमें ये पूरा का पूरा, ये शम्स रहमान फारूकी साहब का नाम आप सारे लोग जानते होंगे, उन्हीं की बेटी ने इस नावल का तर्जुमा किया है अंग्रेजी में, बारा फारूकी ने। तो उनका एक बहुत बड़ा नावल है, बहुत ही, मैं ये समझता हूँ कि मतलब पिछले 25-30 साल में इतना पावरफुल नावल को लिखा नहीं गया। कई चांद थे सरे आसमान नाम से, जो कि मिरर ऑफ ब्यूटी के नाम से इंग्लिश में उसका भी तर्जुमा हुआ है। तो उसमें 18वीं 19वीं सदी का जो कल्चर था और जो तहजीब थी दिल्ली की और लखनऊ की, उसका टकराव, वो जो अंग्रेज लेके आ रहे थे अपना खाना, अपना कल्चर, अपनी तहजीब, उससे जो टकराव है पूरा का पूरा, वो पढ़ने के लायक है। मैं आप सब लोगों से ये मेरा ख्याल इल्तिजा करूंगा कि उस नावल को जरूर पढ़िए आप, खासतौर से फूड के हवाले से। और जहां तक मैंने अभी स्टेटस सिंबल की बात की खाने के हवाले से, उसमें अब और चीज भी है। ये आपने ये कभी नोट किया हो कि आजकल इतने डाइटिशियन के कोर्स हो रहे हैं, मतलब जिसको देखिए वो डाइटिशियन में अपना जो है वो एक कैरियर बना रहा है। तो बैलेंस डाइट की बात हो रही है कि फैट कितना होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट मतलब कितना होना चाहिए, और प्रोटीन कितनी होना चाहिए, और कितनी कैलोरी मिलना चाहिए, कितनी कैलोरी खर्च होना चाहिए। ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं फूड पॉलिटिक्स, फूड सोशियोलॉजी के दायरे में आती हैं, और उन सबको भी इस नावल में डिस्कस भी किया गया है। ऐसा नहीं कि उसको डिस्कस नहीं किया है, क्योंकि लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, फूड आया है लेकिन फूड से पहले तो हंगर है ना। अगर हंगर ही नहीं होती, अगर भूख ही नहीं होती, तो खाने की जरूरत क्या थी हमको। बात तो ये है ना, फूड तो बात की चीज है, वो तो इजाद किया अपना पेट भरने के लिए, और शुरू शुरू में तो जो कुछ खाया भूख की वजह से, उसमें जहरीली चीजें भी खाई। जो पॉइजनस ये मशरूम होते हैं उनके बारे में तो सारे लोग जानते ही जानते हैं, लेकिन इसके अलावा भी जो भी मतलब मुद्दतों का ह्यूमन सिविलाइजेशन का एक्सपीरियंस रहा होगा कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कितने लोग खा के मर गए होंगे, कितने लोग खा के जो है वो बीमार हो गए होंगे। आज जहां हम बैठे हैं हम उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि कहाँ से होके आए, कहाँ से निकल कर आए, कौन सी दुनिया से निकल के यहाँ आए। विल्डूरा की पूरी किताब पढ़िए, स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन, उसमें मालूम हो जाएगा हमको कि अरे हम ये थे। और ये कि कभी कभी भूला हुआ सबक हमें याद करना चाहिए, जो हमने बचपन में पढ़ी थी बेसिक रीडर, उधर को जाना चाहिए। मतलब हमें कभी कभी अपने मादी में पीछे जाना चाहिए, पास्ट में जाना चाहिए, ताकि हम अपना एनालिसिस और बेहतर तरीके से कर सकें। ऐसे नहीं कि अभी अभी पैदा हुए हैं हम, अभी अभी, लेकिन एक बहुत बड़ी तारीख है, जेनेटिक कोड्स हैं उसके अंदर, उसमें डीएनए है, उसमें आर्किटाइप है, उसमें माइथोलॉजी है, उसमें लोक कथाएं। इन सारी चीजों को अगर हम आइसोलेट करके और अपने बारे में बात करेंगे या अपने जमाने के बारे में बात करेंगे, तो वो एक आधा सच ही होगा। तो ये जो पूरा का पूरा मैं आपको यहाँ पर ये पढ़ के सुनाता हूँ। यहाँ पर देखिए कितना समझ में आएगा, कितना नहीं आएगा, लेकिन इसकी जो फोनेटिक है वो आपको मजा देगी।
ये एक दास्तान है मीर हुसैन अता तहसीन की। उसमें जो खानों का जिक्र है वो मैंने नावल के पहले चैप्टर से पहले ही इसमें लिखा, जिससे ये पता चले खाने का क्या स्टेटस है। लेकिन वो हंगर वाली बात अभी रह गई, उसको मैं पूरा करूं। मुझे लगता है देखिए कि इस दुनिया की सबसे बड़ी जबान जो है, और या ये कहना चाहिए जो कि यूनिवर्सल लैंग्वेज है इंसान की, वो भूख है। और वो ऐसे भी है कि कभी देखिए ये भी अजीब इत्तेफाक है कि जो हमारे स्पीच ऑर्गन है वही हमारे खाना खाने के भी ऑर्गन है। जबान के बगैर हम बोल नहीं सकते। जबान, दांत, जबड़े, तालू, इन्हीं के जरिए हम बोलते हैं और इन्हीं के जरिए तो हम खाते हैं। तो मेरे सामने ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इंसान की सबसे बड़ी जो जबान हो, जो उसकी एक इंटरनल जबान हो, या जो कहना चाहिए कि जो उसकी एक इंटरनल कवायद हो, इंटीरियर ग्रामर हो, वो तो भूख है, वो तो हंगर है। अब ये देखिए कि इस अजीज ने कमाल तकल्लुफ से सामान ज़ियाफ़त का मुहैया करके सफरा दावत का आरास्ता किया और अनवाए तोआम हाय लजीज व खुशगवार व अक़साम शीरीनी हाय हलावत बख्श चाशनीदार असनाफ शरबत हाय गुलाब व बेद मुश्क गोना गू मेवा हाय तर व खुश व लबाज माए अक्ल व शर्फ हस्त में नान पुरोई नाने बरकी नाने तिनकी नाने पनीरी नाने खमीरी नाने बाकर खानी व गाओ दबा वो गाओ दीदा याबी और रोवनी व खताई व शीर माल व नाने गुलदार तो कलिया दो प्याजा नरगजी व शिराजी जाफरानी व बादामी कबाब कलिया कोफ्ता सागीना मलहोबा पनभत्ता बोरानी बिरयानी नूर महली खरासानी रूमी तबरेजी शब्देर दम्पो खुश्क मुजाफिर शोला मुतंजन पुलाव कोरमा पुलाव यखनी पुलाव हफ्सी पुलाव बेगनी पुलाव चाशनी अम्बरी काशनी माही कबाब मुर्गो कबाब सीख कबाब भैजा कबाब हलीम हरीसा समोसा कबूली ताहरी खिचड़ी फिरनी मलाई हलवा फालूदा और नमश कंदी मुश्त नाफा साग रूफ नूरियात अचार मुरब्बे नाशपाती अंगूर इंजीर सेब अनार किशमिश बादाम स्वारे पिस्ते वगैरह अग़ज़ियाओ अशरबा किस्म किस्म के जिनकी चाशनी की हलावत और जायके से रूहें फरिश्तों की भी ताज़ा हो जाए। अब देखिए कि नावल मैंने ये 2014 में लिखा था। मैं थोड़ा सा इसके नावल की लिखने की प्रोसेस या इसका थीम क्या बताना चाहिए, थीम तो होता नहीं है कोई उस तरह से। ये होता है कि किसी जमाने में कौन नावलनिगार जो लिखता है, जो मेरा मानना है वो ये कि कुछ कैरेक्टर पैदा करता है और फिर ये दिखाता है कि इन कैरेक्टर पे जिंदगी ने क्या क्या जुल्म ढाया, क्या क्या सितम ढाया, या ये कहना चाहिए कि क्या क्या झेला उन्होंने। उसी से तो थीम निकल के आता है। मैं शायद पहले थीम बना के नहीं लिख सकता। ये तो बाद में फिर रीडर और बाद में क्रिटिक तय करते हैं कि इसमें ये है साहब आपके नरेटिव। क्योंकि जब आदमी लिखता है तो वो अपने अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस से लिखता है, उसको पता नहीं होता है। क्योंकि जो पूरा का पूरा जितना भी क्रिएटिव प्रोसेस है वो बहुत ही पुरस्कार और मिस्टिक चीज है। एक इंटरनल प्रेशर हमारे पर होता है तब हम लिखते हैं। लाख सोचते रहें, बरसों नहीं लिखते, सालों गुजर जाते हैं नहीं लिखते हैं, और अचानक पता नहीं क्या हो जाता है कि कोई चीज ऐसी ट्रिगर करती है कि लिखने बैठ जाते हैं। फिर कुछ दुनिया में कुछ भी नजर नहीं आता उसके अलावा, बाकी सारी दुनिया जो है वो सेकेंडरी लगती है। फिर हमें लिखना ही अपनी इबादत नजर आती है, लिखना ही हमें अपनी पूजा नजर आती है, लिखना ही हमें अपनी क्रिया नजर आती है। हमारे लिखने का जो पूरा स्टाइल है वो इसी तरह से। तो सोच के समझ के कोई प्रोजेक्ट बना के तो कभी लिखा नहीं। 2014 में ये नावल उर्दू में छपा, इसको 2-3 अवार्ड उर्दू में मिले, लेकिन बहुत ज्यादा बात इस नावल पर नहीं हुई, ना उर्दू में हुई और ना ही हिंदी में हुई। लेकिन जब इसका अंग्रेजी तर्जुमा हुआ और JCB अवार्ड इसको मिल गया, जो इंडियन गूगल प्राइज कहलाता है, तो उसके बाद इस पर नए सिरे से बात करने का एक सिलसिला शुरू हुआ। तो इससे मेरा यह भी मानना है कि किसी भी किताब की एज क्या होती है ये हमको पता नहीं है। वैसे तो आदमी को अपनी एज का भी पता नहीं है,
लेकिन ये कि किताब आप किताब लिखने के बाद उससे अलग हो जाइए, वो किताब पता नहीं, उसका रास्ता फिर अलग है और आपका रास्ता अलग है। आप अपनी जिंदगी जीते रहते हैं और किताब पता नहीं आपने आपको कौन कौन से नदी नालों और समंदरों और पहाड़ों और गुफाओं से होगी, कहाँ जाएगी, कहाँ जाकर रोकेगी, पता नहीं कब जिंदगी पाएगी, कब उसके बारे में ज्यादा बातें होंगी, कब उसके बारे में कम बातें होंगी, कब उसको सिरे से नेगलेक्ट कर दिया जाएगा। आपका इससे कोई लेना देना ही नहीं है। आपने एक चीज लिख दी, अब आप उससे आइसोलेटेड अगर नहीं होंगे, डिटैच नहीं होंगे आप, तो फिर आप उसके कैदी बन जाएंगे। मैं आपको बताऊं, और आप लोग यकीन कीजिए कि लिखने के बाद मैंने इस नावी को दोबारा पढ़ा तक नहीं, और जब से ये छप के आया है तब से तो मैंने इसको पढ़ा ही नहीं बिल्कुल, क्योंकि मुझे तो वो ऐसा हाथ से लिखता हूँ, आज भी कंप्यूटर पे लिखता नहीं हूँ। तो जो मखतूता जिसको कहते हैं, जिसको पांडुलिपि कहते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं, हाथ की लिखी अपनी इंक में, उसको बीच बीच में से जब पढ़ा होगा थोड़ा बहुत करेक्ट किया होगा, लेकिन जब से छप के आया है ये, अब तो ये मलयालम में भी आ गया अभी, तो ऐसे ही रख देते हैं, उसका कागज वगैरह देख लेते हैं और उसको जो है वो शेल्फ में रख देते हैं, क्योंकि दोबारा इस दुनिया में जाना मुझे लगता है कि एक भूत की तरह पुरानी गलियों में भटकने जैसा होगा। मैं उन पुरानी गलियों में बिल्कुल सफर निकल, जहां से होके आ गया, तो दुनिया कुछ और थी, बदल गई। हेराक्लिटस ने कहा था ना कि एवरी टाइम यू आर इन द फलक्स, आप पल पल बदल रहे हैं। यू कांट टेक बाथ द ट्वाइस इन द सेम रिवर, तुम एक ही नदी में 2 बार नहीं नहा सकते, क्योंकि इतनी देर में जो है उसका पानी आगे बढ़ जाता है, बदल जाता है। तो वो ये हम क्यों पीछे को जाएं, हमें आगे देखना है। आज की हमारी मसाइल अलग हैं। यही कहिए कि मेंटल स्टेट, आज जिस मेंटल स्टेट में है, तब वो मेंटल स्टेट नहीं थी। उससे पहले जब लिखना शुरू किया था, लिखी तो मैंने पहली कहानी 8 साल की उम्र में थी, जो कि पब्लिश थी, लेकिन अब लौट के उधर तो नहीं जाऊंगा ना, घबराहट होगी। लेकिन ये कि रिकॉर्ड में सब कुछ रख छोड़ा है, ताकि कभी कोई आगे देखे तो सनद रहे कि भाई ये भी लिखा था और इस सन में लिखा था। इन सब चीजों की एक हिस्टोरिकल वैल्यू हो सकती है, लेकिन मेरे लिए अब इनकी कोई इतनी लिटरेरी वैल्यू नहीं है। तो आज आप जब इस पर मुझे बात करना पड़ रहा है, तो मुझे बड़ा रिकॉल करना पड़ रहा है इन सब चीजों के बारे में। अब देखिए 2 बातें, इसका नाम है नेमत खाना। नेमत खाने का इसके बारे में इसमें सिर्फ एक चैप्टर है, बाकी ये पूरी कहानी जो है वो गिल्ट की कहानी है। गिल्ट की कहानी है, चाहे खाना खाने के बाद वो गिल्ट हमें होता हो, या दूसरे को भूखा देखने के बाद वो गिल्ट हमें होता हो, या किसी का मर्डर करने के बाद हमें गिल्ट होता हो। ये सजा की कहानी है, ये पनिशमेंट की और क्राइम की कहानी है, जहाँ पे जुर्म अपनी सजा खुद ढूंढ रही है। यानी जुर्मी मुजरिम जो है वो यही चाहता है कि मुझे सजा मिले, लेकिन वो जो गुड्डू मियां के किरदार का भी उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने 12 साल की उम्र में 2 मर्डर कर दिए, यानी एक बच्चे ने मर्डर कर दिए। ये मैंने तब 2014 में लिखा था। बहुत ही मजे की बात है कि अभी एक फिल्म आई है कोई बाहर की, कोई अंग्रेजी बहुत ही मशहूर वेब सीरीज है, उसमें दिखाया जो बच्चे ने मर्डर किए। हाँ, तो बल्कि किसी ने लिखा इसके हवाले से, रिव्यू किया किसी ने स्क्रॉल में, कि खालिद जावेद ने तो पहले ही लिख दिया था ये, तो लोगों ने बड़ा मजाक बनाया था कि था 12 साल का बच्चा कैसे मर्डर कर सकता है, और 2 मर्डर करें लेकिन पकड़ा नहीं गया। वो इतना चालाक बच्चा है कि वो पकड़ा नहीं गया, और उनका इल्जाम किसी और के ऊपर आ गया। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, वैसे वैसे उसमें गिल्ट पैदा होता गया, और वो ये चाहता है कि कोई एक ऐसी अदालत हो जिस अदालत में कोई उससे कहे कि फिर तुमने मर्डर किए हैं, लेकिन क्योंकि कोई सबूत नहीं है, तो जुर्म उसका जो है, जो क्राइम है, वो अपने आप एक सजा ढूंढने के लिए जा रहा है। उसके बारे में भी है ये नावल। ये नावल खाने के बारे में भी है। नेमत खाना क्या चीज होती थी? नेमत का नाम जो था वो बहुत, नेमत का मतलब ये है कि कोई बहुत ही उम्दा किस्म का कोई खाना, खीर है, फिरनी है, बिरयानी है, मतंजन है, पुलाव है, हलवा है, ये। तो पहले जमाने में, आज से मेरा ख्याल है 40 साल पहले, जब फ्रिज नहीं थे, तो जो खानों को सड़ने से, खराब होने से बचाने के लिए एक अलमारी टाइप एक चीज होती जिसमें जालियां होती, उसी को और वो रख दी जाती थी, फिर ताकि उसमें हवा आती रहे। तो उसमें बहुत, मतलब उसमें कुछ भी रख देते थे आप, उसमें अंडे रख देते थे, प्याज भी रख देते थे कि हवा आती रहेगी। उसमें दूध होता था, उसमें खाने होते थे, लेकिन उसको हम नेमत खाना कहते थे।
तो जदीद दौर का जब ये फ्रिज आया तो उसने वो नेमत खाने को कैप्चर कर लिया। नेमत खाना जो था वो ऑब्सोलीट हो गया, लेकिन ये नाम जो है नेमत खाना, ये अपने आप में कितना खूबसूरत नाम है कि नेमत खाना। अब मजे की बात देखिए यहाँ क्या है, तो सबसे बड़ी बात है वो ये है फराज साहब कि अमीरों के यहाँ भी नेमत खाना होता था, लेकिन जो गरीब लोग होते थे उनके यहाँ भी तो नेमत खाना होता था। लड़कियों की कोई भी शादी हो, नेमत खाना तो उनको जहेज में मिलता ही मिलता था, और कोई मिला ना मिले। तो गरीब से गरीब के यहाँ भी नेमत खाना होता था, चाहे उसकी लकड़ी उतनी अच्छी ना हो। उनकी शीशम की होती थी, सागवान की होती थी, उनकी आम की लकड़ी बनी होती थी। और उसमें उनके यहाँ जो गरीबों के खाने होते थे, उसमें चटनी रखी हो सकती थी, उसमें सूखी रोटी हो सकती थी, उसमें शाही टुकड़े नहीं, उसमें गरीब टुकड़े रखे हो सकते थे। एक तो शाही टुकड़े होते हैं और ये गरीब टुकड़े होते हैं जो रात की बासी रोटी को दूध में भिगो कर रख दिया जाता है, मगर कहते उसको भी वो नेमत खाना ही थे। ये अलन था, ये सबर का, पेशेंस का, कनात का और शुक्र का, गॉड का शुक्र, खुदा का शुक्र, जो दिया है हमारे लिए नेमत है। इसलिए उसका नाम उन्होंने नेमत खाना रखा था। उसका नाम उन्होंने कोई ये नहीं रखा था कि ये गरीब खाना है या ये चटनी खाना है या भुचड़ खाना है, उसका नाम भी नेमत खाना था। एक तो ये, जहाँ तक किचन की बात है, किचन के बारे में बहुत बात हो चुकी। उन्होंने कहा, मैं ये मानता हूँ कि हर इंसान अपने घर में अच्छा, मैं नहीं मानता हूँ। एक बात मैं आपको और बता दूं कि ये जब मैं कहूँ कि मैं ये मानता हूँ तो बिल्कुल यकीन मत कीजिएगा, क्योंकि जब मैंने ये नावल लिखा था तो वो नावलिस्ट मानता था। उसके बाद बहुत नावल लिखे गए तो कहाँ आप कहेंगे कि मैं क्या क्या मानता हूँ। तो ये कोई चूंकि एकेडमिक किताब नहीं है, इसलिए इसकी बहुत जिम्मेदारी मेरे ऊपर उस तरह से नहीं होती है। जैसा भी कैरेक्टर सोचता है उस तरह, जैसे क्या होता है, एक्टर होता है, तो आप ये तो नहीं कह सकते कि इस फिल्म के अंदर जो है वो सलमान खान जो है वो बदमाश बने तो वो वाकई अब ये अगली फिल्म में ऐसे कैसे बन गए, तो उनसे नहीं पूछा जा सकता है। इसी तरह जब राइटर कोई भी कैरेक्टर बनाता है तो वो राइटर उसी कैरेक्टर के अंदर जाके उसी की एक्टिंग करने लगता है। और ये तो भारतनाट्यम में भी लिखा ही गया पूरा का पूरा, उसमें मौजूद है नाट्यशास्त्र में कि जो अभिनेता होगा वो उसको, जो उसका चरित्र होगा उसमें ढलना पड़ेगा। तो वो ये सोचते हैं गुड्डू मियाँ, जिनको आप वक्ती तौर पे मैं हूँ समझ लीजिए मैं हूँ, लेकिन वो मतलब आप एज्यूम कीजिएगा अलजबरे की तरह कि मैं हूँ। कि हर इंसान, हर घर, अपने घर में, हर आदमी अपने घर में एक छोटा सा मैदान जंग लिए घूम रहा है। द किचन इज अ बैटलफील्ड, स्मॉल बैटलफील्ड। जितनी जंगें लड़ी गई हैं आज तक, देखिए वो एक पीस ऑफ लैंड के लिए लड़ी गई, एक कलेक्टिव लेवल पे। मुल्क जो लड़ते थे वो क्यों लड़ते थे आपस में? वो जमीन के लिए लड़ा करते थे, मिल्कियत के लिए लड़ा करते थे। वो जमीन ही तो थी, जमीन का ये टुकड़ा तो हम अपने घर में जो है वो बैटलफील्ड बनाए ही रखते रहे। अगर आप देखिए, आप लोगों के दिलचस्पी की चीज होगी, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम आप लोग पढ़ते आए हैं, ये तो है ही सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट। और ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में जो मसाइल थे, अब न्यूक्लियर फैमिली में कुछ और मसाइल हो गए होंगे, लेकिन ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में अगर सिक्योरिटी थी तो साथ साथ में ये भी मसाइल थे। क्योंकि मैं ये कहता हूँ कि एक घर में अगर 4 भाई हैं और चारों एक घर में रह भी रहे हैं, तो मैं उनसे मिला तो बोले भाई उनसे चारों एक ही घर में रहते हैं, चारों पे अपने अपने कमरे हैं। ठीक है भाई, अपने अपने कमरे हैं, चारों भाई एक घर में रहे। तो मैं पूछता हूँ कि तुम लोगों की रसोई सबकी अलग अलग है। तो मैंने कहा अगर रसोई सबकी अलग अलग है तो तुम चारों अच्छे पड़ोसियों की तरह रहे हो, तो बोलो भाइयों की तरह कहाँ रह रहे हो? क्योंकि बचपन में तो तुम ऐसे रहते नहीं थे। जब तुम भाई की तरह पैदा हुए थे, जब भाई एक माँ के 4 थे, तो वहां तो मतलब रसोई तुम्हारी अलग करी नहीं गई थी। कि कुछ अपने नरेशर के बारे में मैं आपको जरा एक बावर्ची खाने के बारे में एक नक्शा खींच देता हूँ। अच्छा, ये 60 साल पहले की कहानी है, तो आप लोग अपने जो बिल्कुल यंगर जनरेशन है वो इसको, जिस तरह आप लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, इस तरह अपने घर की भी हिस्ट्री पढ़िए कभी, और उससे पता चलेगा। चूल्हा हुआ करता था, चूल्हा। अब जब ये ट्रांसलेशन हो रहा था
तो चूल्हे के लेके बड़ा मसला पैदा हुआ था। इसमें बहुत सी प्रॉब्लम हुई थी कि ये कौन सा चूल्हा है, क्योंकि इसको हर्थ नहीं कह सकते थे, हिर्थ नहीं कह सकते थे। कि ये चूल्हा था पिंडोल से पुता हुआ, जिसके पीछे औला था। औला समझते हैं? उसी चूल्हे के पीछे एक छोटा सा मोकला हुआ करता था, उस पर भी कोई चीज रख दिया करते थे। तो ये चूल्हा था और पिंडोल से पिता हुआ, जिसके पीछे औला था। ये खाना पक जाने के बाद उसकी हांडी औले पर रख दी जाती ताकि गर्म रहे। लकड़ियां अगर सूखी होती तो चूल्हे में धड़ाधड़ जलती, और अगर गीली होती तो सारा बावर्ची खाना धुएं से भर जाता। चूल्हे के सामने बैठी हुई औरतों की आंखों से लगातार पानी या आंसू बहते रहते। पानी थे कि आंसू थे, जो बावर्ची खाने की स्याही में भी गीलापन पैदा कर देते थे। खाना पक जाने के बाद चूल्हे में भूबल बाकी रहती, एक सिलेटी रंग की राख जिसको कुरेदने पर शोले निकलते थे। अक्सर रात को दूध का बर्तन गर्म करने के लिए इसी भूबल पर रख दिया जाता था। हमारे घर में गोबर के उपलों का रिवाज नहीं था, वो निस्बतन कुछ गरीब और निचले तबकों में इस्तेमाल किए जाते थे। मगर मुझे जलते और सुलगते हुए उपलों पर बनी हुई चाय बहुत पसंद थी। इस चाय में दूध की खुशबू बहुत खालिस और ममता से भरी हुई महसूस होती। तो उपले और गाय का ताल्लुक है ये। मैंने ऐसी चाय बहुत बार पी है। चूल्हे से 2 हाथ के फासले पर दाईं तरफ दीवार पर ईंटों की एक अलमारी थी, जिसमें रोजमर्रा के बर्तन और मसाले रखे हुए थे। अक्सर यहाँ पर प्यास सड़ती रहती थी। फर्श पर एक तरफ आटा गूंदने का पीतल का तसला, काले रंग का बहुत बड़ा भारी तवा जो मुझे काले सूरज की तरह दिखाई देता था, और जिस पर बड़ी बड़ी गेहूं की चपातियां पकती थी। उन दिनों छोटे छोटे फुलकों का कोई भी रिवाज नहीं था, बल्कि इनको तो बहुत ही हकारत की नजर से देखा जाता था। और तवे के साथ ही इधर उधर चिमटा और फुकनी पड़े रहते। अपनी नाम दोनों काले रंग के थे और दोनों में बैलेंस था। फर्श पर ढेर सी ऊंची नीची लकड़ी की पटलियां थीं, जिस पर बैठकर औरतें काम करती, और जाड़ों के दिनों में सब लोग इन्हीं पटलियों पर बैठकर चूल्हे के आगे बैठकर खाना खाते। क्या कभी इस बात पर गौर किया गया है कि बावर्ची खाने की तकरीबन तमाम चीजों में जो वहाँ के अप्रेंटिस हैं, इंस्ट्रूमेंट हैं, कुछ खास मौकों पर एक खतरनाक हथियार बन जाने के इम्कानात पोशीदा हैं। चाहे वो तरकारी काटने वाली छुरी हो या तवा हो, चिमटा हो, फुकनी हो, जलती हुई लकड़ी हो, चूल्हे में रोशन धड़ाधड़ जलती हुई आग हो, मसाला पीसने वाली सिल हो या पिसी हुई मिर्चें हो, भभकती हुई भूबल हो या मिट्टी का तेल ही चूना हो, घर के किसी और हिस्से में इतनी ज्यादा तादाद में ऐसी चीजें नहीं थी, यहाँ तक कि अगर अंदर के कमरे में एक बंदूक भी टिकी होती थी तो इन चीजों के आगे वो भी बड़ी कमजोर नजर आती। बावर्ची खाना चाहे घर के किसी भी हिस्से में हो, किसी भी रुख पर बना हो, चाहे वास्तु शास्त्र वालों से कितनी ही मदद क्यों न ले ली जाए, वहाँ के लड़ाई झगड़े नहीं जाते। बावर्ची खाना एक मैदान जंग है और पूरे घर, पूरे खानदान, बल्कि इंसान की किस्मत का फैसला इसी छोटे से और बज़ाहिर पाक, साफ, पवित्र स्थान से ही होता है। अदालत यहीं लगती है, मुकदमा यहीं चलता है। पूरा घर अपनी खामोश आंखों से ये तमाशा देखता है, जब तक कि आखिर में वो खंडर न बन जाएं। इंसानी आंतों की भूख और 2 वक्त की रोटी में एक रुसरार तशद्दुद छुपा होता है। ये वायलेंस सिर्फ स्याही और खून की तरफ बढ़ता है और अंजाम कार बस अगर कुछ बच जाता है तो बदनीयती बच जाती है और कुछ नहीं बचती है। मर्द और औरतें आहिस्ता आहिस्ता खुद भी छोटे छोटे बदकलई बर्तनों के अंदर बदलने लगती हैं। और 5-10 मिनट बोलना चाहिए। अरे जी जी कितना बोलेंगे। चाहते हैं या पूछना चाहते हैं खालिद साहब, जरूर कीजिए। तो आप जरूर करें।
ये सभी के लिए ओपन है, फैकल्टी मेंबर्स। यस यस मनीषा। जो कि नाविल के उसमें थे, लेकिन जो प्रेजेंट टेंस है उसका, उसमें वो बिल्कुल बूढ़ा हो मतलब हो चुका है। तो एक पूरा एक उसकी याददाश्तें हैं, उसकी मेमोरीज हैं, जिसको नाविल के फार्म में लिखा है। तो मेरा ख्याल है ये 60 की जो मतलब दहाई है, 70, 80 और 90 के आते आते जब से ये मार्केट इकोनॉमी वाला दौर आया या ये लिबरलाइजेशन आया, या जब से आप ये कह सकते हैं कि औरतें जो थी हमारी बड़ी आज़ाद हुई, जैसे कि एजुकेशन पे बहुत जोर दिया गया, इससे पहले नहीं था। जो कि मैं तो गवाह हूँ, मैं भले ही बच्चा था लेकिन मैं एक शेर सुनाऊं आपको। अपने बचपन में भी हम कम उम्र थे, बच्चा ना थे। तो 8 साल की उम्र में लिख रहे थे, तो हमने देखा है, और कुछ मेमोरी मेरे लिए पता नहीं, वो याददाश्त मेरे लिए अजाब है शायद। मैं उसकी तारीफ नहीं करता हूँ, मैं भूल जाना चाहता हूँ। मुझे 4 साल का सब याद है, 4 साल की। तो मेमोरी ना हो तो मैं ये लिख भी ना पाऊँ। तो वो मैंने देखा है, ये चूल्हे का वगैरह वो सबके घरों में होता था। वो कोई गरीब घर नहीं, वो कोई घर ऐसा नहीं था जहाँ ये ना होता हो। लेकिन जब से ये 2 चीजें जिन्होंने के विमेन को बहुत ज्यादा, ये नहीं कहना चाहिए कि लिबर्टी दी या फ्रीडम दिया, वो उसमें एक तो प्रेशर कुकर है मेरा ख्याल। नहीं ये रियली है। और दूसरा गैस नहीं, और मतलब उससे और इससे पहले गैस भी है। क्योंकि देखिए ये चूल्हे का जो मैंने नक्शा खींचा है ना, वो उसको जिसको देखिए आंखों में जाले होते थे, चेहरे काले पड़ जाते थे, आंखें में जाले सबसे पहले आ जाया करते थे, पहले खांसी रहती थी, कोई एज नहीं थी, मतलब कोई वो जो उनकी कोई एज ही नहीं होती थी। 40 साल की उम्र में जो है वो कोई औरत ऐसी लगने लगती थी जैसे कि आज की उम्र में 80 साल की ना लगी, इतनी बीमार हो। तो ये जो गैस आई है जब से, और ये होम साइंस का सब्जेक्ट मेरे सामने यूपी बोर्ड में रखा गया है। मतलब मुझे याद है कि भाई होम साइंस भी अब जो है वो लड़कियों के लिए कंपलसरी हो जाएगी। वहां से साग और सफाई की चीजें मतलब पैदा हुई कि क्लीनलीनेस क्या हो सकती है, हाइजीन क्या हो सकता है, उसके बाद से चीजें बदलना शुरू हुई। तो ये उस जमाने का, ये 90 तक आते आते आपने देखा नहीं कि जो एडवर्टाइजमेंट आया करते थे उस पर हमें हंसी भी आती थी, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट का जो मैसेज हुआ करता उस जमाने का। आप देखिए जो टीवी था 84-85 का, जब ये दूरदर्शन मतलब शुरू में आया था, तो अफसर आएंगे कल, घर पे होगा क्या भगवान न जाने, बीवी रहने। तो वो कहता है शुक्र के यूनाइटेड है हमारे पास, बड़ा मशहूर। हाँ, तो वो मतलब यूनाइटेड उस वक्त आप ये देखिए कि मिडिल क्लास जो कि तबका था, उसमें कैसे धीरे धीरे वो एक ये इंटेंसिव एडवर्टाइजिंग के जरिए प्रेशर कुकर को पॉपुलराइज किया जा रहा था, और बहुत आसान वो हो गया था खाना। बल्कि ऐसे प्रेशर कुकर थे जिसमें दाल भी पक जाती थी, साथ में ऊपर एक ढक्कन होता था। अब नहीं आते हैं ऐसे, और नीचे उसमें चावल, एक साथ दाल और चावल बना लिए और काम हो गया। और गैस सारी चीजें थी। तो